अरे नहीं प्लीज ये मत करना. I always like going out on my birthdays. Why you and Sangu Didi don't post together? How has your life changed after marriage? Abhineet's effort to propose you in detail. And मैं और गगन दोनों ही उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे. उन लोग के साथ बात करते करते ही सब कुछ चेंज हो गया. संगमित्रा के साथ चेंज हुआ था. That is because Namaste you all and welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you all are doing absolutely great at home, safe and sound. Before starting this video, I am so sorry. तुम लोग को पता होगा लास्ट मंथ मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था टाइम से. मैंने बोला था जबकि कि मैं ट्यूसडे और फ्राइडेज को व्लॉग अपलोड करूंगी, बट आई वॉज इन दिल्ली, मेरे क्लासेस चल रहे थे एंड मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा था कुछ रिकॉर्ड करने के लिए. बहुत भसड़ मची हुई थी. बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन and take out time and do important things that I have to do. Also I'm quite in a rush because I'm trying कि जब तक मेरी वापस से अभी फ्लाइटें ना लगे. By the way मेरी फ्लाइट अब शुरू होने वाली हैं. You all have been waiting for me to start flying, so I've cleared all my exams. Now I have to go for few flights जहाँ पे मेरे फिर से एग्जाम्स होंगे and once I clear that उसके बाद मैं officially flying शुरू कर दूंगी. But I don't know how long that is going to take. Anyways, the good news is कि हाँ flying शुरू होने वाली है. We need to give it some more time. I don't know how long, but yes. Coming back to today's video, आज का वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाला है. I had posted on my community post कि प्लीज जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है apart from cabin crew, because last Q&A में हमने वही किया था, तो shoot in your questions. Let's begin this video. Okay, so we have 311 comments. Obviously मैं सारे नहीं कर पाऊंगी. जितना हो पाएगा उतना करते हैं, बाकी का देखते हैं दूसरे वीडियो में बना देंगे. First question is your mother Bihari? If you are Marwadi, then how is your accent Bihari? So basically we are from Kolkata, ठीक है, and we are not from a place in Kolkata जहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा रहते थे. We are from a place in Kolkata जहाँ पे मारवाड़ी और बिहारी लोग ज़्यादा रहते थे. तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस वहीं से था. I also had my best friend who was a यादव, तो उसके घर में भी वो accent रहता था. And उसके बाद when I went to Chennai, then I met Sangamitra. She also had that accent. And then obviously my husband, he does not have that much of an accent. He talks normal Hindi and then he has that accent also. एंड उसके फैमिली में स्पेशली माई मदर इन लॉ, शी हैज एकदम ठेठ वहाँ का एक्सेंट. उन लोग के साथ बात करते करते ही सब कुछ चेंज हो गया. मेजॉरिटी संगमित्रा के साथ चेंज हुआ था. दैट इज बिकॉज हम लोग इतना साथ में रहते थे. सो बेसिकली वी वर 3 फ्रेंड्स. I was a Marwadi, Gagan was Punjabi and Sangamitra was from Sitamarhi. And मैं और गगन दोनों ही उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे. And we ended up, inculcating that accent more than talking in our accent. Love story, Abhineet's school and professional journey. What are your long-term goals and what are you working towards? Love story तो हमारी वैसे कुछ है नहीं, ठीक है, और जो थोड़ी सी है वो मैंने Q&A वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है अभिनीत के साथ. वो वाली देखोगे तो तुम समझ जाओगे. There's nothing fancy about our love story. It was like mutually we used to like each other. Maybe उसको भी समझ में आता था, मुझे भी समझ में आता था. So we just confronted कि do you like me? I like you. Okay fine, टाटा बाय बाय. ऐसे करके तो हमारा लव स्टोरी शुरू हुआ था. So Abhineet is from Ranchi. Class 10 तक he was in Xavier's and उसके बाद he was in DPS and after that he came to Bangalore. वो यहाँ पे पेसिट से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था. What are your long term goals? I don't want to talk anything about it. All I want to do is go with the flow and जब जैसा जैसा होता रहेगा वो दिखता रहेगा. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो गोल है ना उसका बात मत करो, वो करो और जब हो जाएगा तो अपने आप दिखने लग जाएगा. So the more you talk about it, I feel the more you're jinxing it. So मैं नहीं करती उसके बारे में. Another one, love story. प्लीज जाके वीडियो देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है. और यूट्यूब जर्नी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड. आई थिंक यूट्यूब मैंने शायद 2019 या 2020 में शुरू किया था. बेसिकली कोविड के बाद मैंने शुरू किया था. तब नहीं पता था कि मैं सीरियसली इसको निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी. बट आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट फॉर कैमरा. आई ऑलवेज हैव हैड इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू पीपल, इन डांसिंग और एनी co-curricular activities which involves being social. हाँ, बट मैं ये भी कहूँगी कि YouTube में रहते रहते ना, the more I like speaking to the camera, the more I've become introvert. मैं जब बाहर लोगों के साथ जाती हूँ या उन लोग से मिलती हूँ, मेरे पास टॉपिक ही नहीं रहता बात करने के लिए. I go blank. तो ये एक नेगेटिव पार्ट वैसे मुझे लगता है. वैसे तुमने पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, बस बता रही हूँ, फ्लो में निकल रहा है. ओके, इन विच फील्ड हैव यू डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम? आई एम अ BCom ग्रेजुएट. ओके, वैसे पूछना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स पर्सनल, बट आप लोग, बट वॉट अबाउट बेबी प्लानिंग? अभी नहीं सोच रहे हैं ऐसा कुछ. आई थिंक देर इज स्टिल सम टाइम. टेल अस अबाउट Abhineet's siblings. Abhineet is a single child, so he does not have any siblings. How do you manage so much shifting study and personal life? It looks so hectic and you have such a positive vibe and energetic personality. All the best for your new job. Thank you so much. And how do I manage? I don't know.
मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पाँव में पर लगे हुए हैं, जब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ भाग जाती हूँ। आई समटाइम्स फील कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए होता है बीच बीच में, एंड आई जस्ट गो ब्लैंक, मतलब एकदम गायब हो जाती हूँ कभी कभी बीच में। अभी बीच में आई एम अवॉइडिंग टू डू दैट बिकॉज आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट मिसिंग फ्रॉम वन प्लेस आई एम गोइंग टू मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई एम अवॉइडिंग दैट, बट जुफ करके निकल जाती हूँ मैं। Abhinit's effort to propose you in detail. Nothing. Nil. Nada. Zero. He did not make any efforts to propose me, and my proposal, like I said, बहुत simple था. He was in Chandigarh. I was in Bangalore. He texted, I want to ask you something. I said, yes. He said, I like you. Do you like me? I said, yes. He said, okay. I said, okay. And then he said, awkward हो गया. I said, yes. I said, okay, bye. Okay, bye. That was our proposal. Nothing else. बेबी प्लान 22 लाइक्स, नहीं पता मुझे अभी। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम इन द मिड्स ऑफ सच हसल बसल? घर भी देखना, बाहर भी, इतना ट्रैवलिंग भी, मीन्स लाइक यू प्री प्लान योर डे, लाइक आज ऐसे करूंगी या ये करना है, और जस्ट गो विद द फ्लो। कितने बार होता है आई ट्राई टू प्री प्लान माई डे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई न्यू टुडे आई हैड सर्टन थिंग्स टू डू, सो मैंने आज 3 शॉर्ट वीडियो शूट कर लिए, अभी एक शूट कर रही हूँ, एंड आई हैड टू गो टू अ डॉक्टर बिकॉज आई हैड टू गेट माई वैक्सीनेशन डन, एज एन येलो फीवर वैक्सीन लेना था। तो मैं कल रात को बैठ के अपना दिन प्लान करी थी कि ये टास्क तो मुझे करना ही है, बाकी जो फ्लो में हो पाए वो अलग चलेगा। बट कितने बार होता है जो मैं सोचती हूँ वो ऑब्वियसली नहीं हो जाता है, सो आई ट्राई टू गो विद द फ्लो एंड ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट आई नीड टू डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मैंने शॉर्ट वीडियोस 3 इसलिए शूट कर लिए बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि मैं कल बैंगलोर में हूँ या नहीं है। एटलीस्ट कल रात में इस बात की श्योरिटी थी मुझे कि मैं कल मतलब आज बैंगलोर में हूँ, तो मैंने सोचा जो काम मेरा पेंडिंग है उसको पहले ख़त्म करते हैं। डू यू डू योर ओन एडिटिंग और यू हैव समवन एल्स? आई डू मोस्ट ऑफ माई एडिटिंग्स ऑन माई ओन। अभी रिसेंट में 2-3 ब्रांड प्रमोशन वाले वीडियोज़ मैंने एडिटर से करवाए हैं, बट अदरवाइज आई एडिटेड ऑन माई ओन। अभिनीत जीजू कहाँ गए हैं? सो ही हैड बीन टू जर्मनी, बट अभी वो पेरिस में है एंड वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। आपका फ्लाई कब स्टार्ट होगा और जब भी होगा पहले वाले दिन बता दीजिए, आई बुक अ टिकट जस्ट टू मीट यू। अरे नहीं, प्लीज़ ये मत करना दैट यू बुकिंग अ टिकट जस्ट टू मीट मी। हम कभी किसी और दिन इत्मीनान से मिल लेंगे। एंड फ्लाइंग मेरा कब स्टार्ट होगा ये मुझे स्वयं नहीं पता है, तो जिस दिन हमें पता चलेगा हम यहाँ ज़रूर बताएंगे, बट हम डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप अपना पैसा बर्बाद करें सिर्फ हमसे मिलने के लिए। आपका बेस तो बैंगलोर हो गया था, फिर क्यों दिल्ली से स्टार्ट करोगे? नहीं, मेरा बेस बैंगलोर हुआ नहीं है, मेरा बेस अभी भी दिल्ली है, बट आई हैव गॉट अ स्वॉप. So someone else is going to fly from here and I'm going to fly from Delhi for some time, and after that we can take a swap. So currently my base is Delhi. How the idea of ending every reel with Jai Hind came into your mind? Everyone should learn this from you. Okay. I feel I'm patriotic by nature. History का मुझे उतना डेप्थ में नहीं पता है, बट मैं बीच बीच में कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ. One thing I feel is there's no harm in saying Jai Hind, and it kind of gives me a sense of belongingness. Also, I really want कि बाकी जितने भी डेवलप्ड जगह है ना आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली लाइक दुबई, आई वॉन्ट कि अपना इंडिया कभी उस मुकाम तक पहुंच पाए. बहुत टाइम लगेगा, आई नो, बिकॉज वी आर यूज टू नॉट हैविंग रूल्स, वी वांट टू ब्रेक रूल्स, और वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें में हम वो ऐसे कर ही देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रूल स्ट्रिक्टर हो जाए और कुछ ज़्यादा अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो जाए, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूल चेंज होगा तो हम जो रूल करने वाला उसी को बदल देते हैं. बट एनी वेज आई स्टिल वॉन्ट कि मैं एक ऐसा नेशन बने ताकि लोग बाहर से यहाँ पे आना पसंद करें, ना कि हम ये करें कि लोग यहाँ पे आकर हम उनको ठगने लग जाए. एनी वेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट या जय हिंद मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है. There's no harm in talking about your country, or there's no harm in thinking about your country even once. A quick update related to clothing business. Related to my clothing business, यार ये दिक्कत हो गई थी कि आपको पता है कि मैं 10 चीज़ें अपने ज़िंदगी में करना चाहती हूँ, और उस 10 चीज़ों में से ये एक चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा था. अर्लियर जब हमने परचून शुरू किया था तो ऑब्वियसली अगस्त्या, अभिनीत और मैं, हम लोग तीनों मिलकर इसको संभालते थे. बट धीरे धीरे बोथ ऑफ देम स्टार्टेड गेटिंग बिजी इन देयर वर्क. तो मुझ पे अकेले बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था. एंड देन फिर मेरा ट्रेनिंग वेनिंग का शुरू होने लग गया था. तो आई न्यू कि या तो मैं दिल्ली जा सकती हूँ या मैं यहाँ बैठ के ये काम कर सकती हूँ. दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि ओके फाइन, गिव मी सम टाइम, लेट मी कम बैक टू बैंगलोर प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट. अभी जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ तो मैं यहाँ से ऑर्डर्स तो ले सकती हूँ, बट व्हाट इफ मैंने कल के लिए पिकअप स्केड्यूल कर दिया और कल मैं दिल्ली चली गई और यहाँ से पिकअप नहीं हो पाया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इश्यूज दैट आई फेल्ट आप लोग के साथ कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, या तो आप कोई ओकेशन में मंगा रहे होगे या बर्थडे कुछ भी हो सकता है ना. मान लो आपने मंगा लिया बट मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ वो पहुँचाने के लिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग के साथ गलत कर रही हूँ. येस, दैट इज़ वन रीज़न कि मैंने सोचा कि नहीं, लेट मी टेक सम टाइम एंड देन डू इट प्रॉपरली, नॉट नाउ बट सम टाइम लेटर. आई रेगुलरली वॉच योर वीडियोज एंड आई फाउंड आउट दैट यू कीप योर हाउस वेरी नीट एंड क्लीन. थैंक यू सो मच. आई ऑल्सो स्टे सिंगल विद माई हस्बैंड बट माई हाउस इज़ वेरी अनटाइडी. हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, योर वीडियोज एज वेल एज योर हाउस?
आई डोंट नो वाई आई ऑलवेज हैव दिस थिंग दैट जब भी मेरे घर पे कोई आए ना वो हमेशा ये बोले आकांक्षा तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, एंड दैट इज व्हाई आई डू टेक एफर्ट्स टू इंश्योर दैट माय हाउस इज क्लीन. इफ एट ऑल मैं नहीं करती तो जब भी अभिनीत फ्री रहता है उसको दिखता है तो वो भी करता है, तो ही ऑल्सो डज इक्वली टेक एफर्ट्स टू कीप द हाउस क्लीन. व्हाई यू एंड संगू दीदी डोंट पोस्ट टुगेदर? इज एवरीथिंग फाइन बिटवीन you both? Genuinely asking because your trio was the bestest and purest bond I've seen back then. बाकी lots of love to you. It was just last night मैं गाना सुन रही थी और मुझे गाना सुनते सुनते उन दोनों की इतनी याद आ रही थी ना कि यार पूछो मत कि यार, because we used to vibe a lot on that song when we were in Chennai. But otherwise संगो मेरे बीच में कुछ खराब नहीं चल रहा है. We do talk to each other and दिल्ली में जब हम थे हम मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं हैं. In fact I think we met twice or thrice and things are fine. Just that sometimes I feel कि यार एक तो हम कभी कभी मिलते हैं and उसमें भी हम शुरू हो जाएं गाइस आज मैं संगू से मिली, गाइस आज हमने ये किया, तो ऐसा लगता है कि आप उस टाइम का इंपॉर्टेंस वीडियो में तोल देते हो. एंड दैट इज वन रीजन आई डू नॉट व्लॉग समटाइम्स. बीच में थोड़ा सा अनबन हो गया था एंड वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था एंड विच इज़ नॉर्मल यार, हर फ्रेंडशिप में हो जाता है. बट येस वी स्पोक अबाउट इट, वी टॉक्ड इट आउट एंड देन थिंग्स आर फाइन, नॉट दैट वी डोंट टॉक. शी इज ऑल्सो इन यूट्यूब एंड आई एम टू. कितने बार होता है कि मुझे अगर कोई चीज़ पे लो फील हो रहा है तो आई टॉक टू हर कि भाई देखना ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड इवन शी डज द सेम. सो थिंग्स आर फाइन. इट्स जस्ट दैट आपको सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा तो शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं थिंग्स आर नॉट फाइन, बट नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. वॉट अकॉर्डिंग टू यू आर द 3 थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड दैट आर द पिलर्स ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप? ट्रस्ट, लॉयल्टी and love. How was your life after school? Was it stressful as school got over or what was it? मैं तो स्कूल लाइफ ही स्ट्रेसफुल था. I've never enjoyed my school life. I've had a terrible school life. उसके बाद भी स्ट्रेस रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं रहा है, बट कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा चिल हो गया था. चिल इन द सेंस मैं कम से कम अपने स्कूल से परेशान नहीं थी 11 के बाद, बट उससे पहले तो मैं स्कूल से भी बहुत टॉर्चर्ड रहती थी. आई एब्सोल्युटली हेट माई स्कूल लाइफ. लाइक आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल. छोटी के साथ सबसे मेमोरेबल मोमेंट, या छोटी ना बेसिकली शी इज़ 13 ईयर्स यंगर टू मी, तो मेरे लिए ना मेरा बच्चा टाइप्स है. मेमोरेबल में शायद अच्छा मोमेंट याद नहीं होगा, बट मुझे एक मोमेंट ना एकदम क्लियर है. आई थिंक शी वाज इन 3 or 4. उसने ना एक बार ट्यूशन में चीटिंग की थी एंड उस दिन मैं उसको पिक करने गई थी और टीचर ने मुझे बोल दिया कि उसने चीटिंग किया है, और आई कुड नॉट टेक इट कि यार इसने चीटिंग कैसे कर दी. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई क्राइड सो मच. फॉर मी छोटी इज दैट वन पर्सन जिसको मैं डांट सकती हूँ, बट अगर कोई और डांटता है ना उसको तो मेरा पूरा आंख में आंसू आंसू भर जाएगा, बिकॉज एक तो मुझे गुस्सा आता है एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई एंगर. आई एंड अप क्राइंग. So I don't let anyone else shout apart from Abhineet because I know वो उसको कुछ selective चीज़ों के लिए डांटता है, and I think those topics are important because I really want her to study. But otherwise अगर कोई और उसको डांटता है ना, I don't let anyone else shout on her. How do you manage to stay positive, like handling everything so positively? Don't you get frustrated managing career, personal life? I of course get frustrated. I am also normal human being and मेरा भी दिन आता है जब मेरी ना खिसक जाती है. कितने बार मैं भी अपने आप को डाउट करती हूँ कि मैं क्या ही कर रही हूँ जिंदगी में, क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे भी समझ में नहीं आता. अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं. जब डाउन आता है थोड़ा देर के लिए लो हो जाती हूँ, थोड़ा अपने आप को टाइम देने की कोशिश करती हूँ, देन जब ठीक हो जाती हूँ आई गेट बैक टू व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यार कमिटमेंट्स होती हैं 10 जगह में और वो करना ज़रूरी है. फॉल टचवुड. ओके टचवुड. आप और अवनीत भाई इतने वेल सेटल्ड क्यूट प्रैक्टिकल कपल हो, बट क्या कभी बिफोर मैरिज रिलेशनशिप डेज में आप लोग का भी नॉर्मल कपल जैसा लड़ाई होता था? नहीं यार, मतलब वी हैव नॉट फॉट. जहाँ तक मुसीबत आती थी कि मुझे अगर ऐसा चढ़ भी गया है कि मैं झगड़ा करूँगी तो वो ऐसा कुछ बोलता था कि मुझे हंसी आ जाती थी एंड यूज्ड टू फॉरगेट द टॉपिक. सो वी हैव नॉट रियली फॉट. एक बार जो होगा वो तुम्हें पता ही होगा, एक कोकोनट के पीछे हमारी झगड़ा हो गया था. मैंने Q&A वीडियो देखा होगा तो अभिनीत ने बोला था एक ही झगड़ा हुआ है हमारा जो मैंने किया था कोकोनट के पीछे, बट हाँ उसके अलावा नहीं हुआ है. ओके, व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दिस बर्थडे? भैया भी नहीं है तो नहीं, भैया आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, संडे को आ रहे हैं इनफैक्ट. एंड मैंने पहले से बोल के रखा है यार मुझे कहीं जाना है घूमने के लिए. आई ऑलवेज लाइक गोइंग आउट ऑन माई बर्थडेज और डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट आई ऑलवेज लाइक स्पेंडिंग माई बर्थडेज विथ हिम. आई डोंट नो वाई. सो इस बार भी मेरा मन है कहीं जाने का. गोवा तो अब हो गया यार, 3-4 बार जा चुकी हूँ, मुझे वैसे अभी भी मन है कि गोवा ही चलता है, पता नहीं क्यों. आई लव दैट प्लेस, बट आई वॉन्ट टू गो आउट समवेयर. आई हैव बीन टेलिंग हिम एंड आई एम श्योर उसके दिमाग में कुछ होगा कहीं जाने का. अभी तो वो नहीं बोलेगा, बट लास्ट टाइम उसने ये बोला था, लास्ट मिनट तक नहीं बोला था, 20 तारीख को उसने बोला कि हाँ 21 तारीख हम लोग गोवा जा रहे हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू गाइज टू मैनेज लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज? फर्स्ट ऑफ ऑल बीच बीच में ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद वो हमेशा से ही दूर रहा है. मतलब ऐसा होता है कि वो 15-20 दिन के लिए जा रहा है या 1 महीने के लिए जा रहा है. अभी ये हो रहा है, और मैं जब जाती हूँ तो मेरा भी सेम रहता है कि कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, या कभी 3-4 दिन में भी आ जाती हूँ. सबसे पहले मुझे ये लगता है ना कि जिस दिन वो जाता है या जिस दिन मैं जाती हूँ उसी दिन से आई लुक फॉरवर्ड टू द डे वी आर गोइंग टू मीट. पहले से अपने काउंटडाउन जोन
में रहती हूँ मैं, ऑब्वियसली मतलब गिनती नहीं हूँ, 10 दिन है, 9 दिन है, 8 दिन है, बट वी ऑलवेज कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे वी आर गोइंग टू मीट अगेन. एंड आई नो दैट ही इज आउट देयर टू वर्क, और वेन एवर आई एम गोइंग आई एम आउट देयर टू वर्क. तो उस बीच में डिस्ट्रैक्शंस दोनों ही नहीं चाहते कि दोनों के लाइफ में हो. तो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी रहती है कि ज़्यादा आई मिस यू ना करते रहे, बिकॉज फिर वो इमोशनल होकर काम नहीं हो पाएगा ढंग से. वो चीज़ मेंटेन करना जरूरी है, एंड दैट इज वॉट वी डू. बट आज जब भी ही इज फ्री एंड जब भी आई एम फ्री एंड व्हेन वी हैव टाइम टू फॉर ईच अदर, वी इंश्योर दैट वी आर टॉकिंग पीसफुली, प्रॉपरली, वॉट एवर वी वॉन्ट टू टॉक. ओके, दैट इज इट अबाउट टुडे. ये वीडियो 47 मिनट्स का बन गया है, जिसको मुझे छोटा करके कम से कम 15-20 मिनट का बनाना है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर मी. Ending this video here. Thank you so much for watching this video. I hope you guys liked it. I will see you all in the next video. Take care of yourself till then. Bye bye. Namaste. Jai Hind.